Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to EA English. Myself Imran Ali Roy. ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਕ ਹੈ ਉਹ ਫਾਰਮਸ ਆਫ ਵਰਬਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਬਕ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ 1 ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ 2 ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਵਰਬ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਫਿਕਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ ਹੈ ਉਹ ਵਰਬਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਾਰਮ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਾਰਮ ਆਫ ਵਰਬ। ਵਰਬ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਤਲੇ ਟਾਈਟਲ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਐਡ, ਐਡਰੈਸ, ਐਡਜਸਟ, ਐਡਮਾਇਰ, ਐਡਮਿਟ, ਐਡਵਾਈਜ਼, ਅਫੋਰਡ, ਐਗਰੀ, ਅਲਾਈਟ, ਅਲਾਓ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਰਬਸ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਰਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹਾਲ 'ਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਨਸੀਹਤ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਨਸੀਹਤ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਨਸੀਹਤ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਨਸੀਹਤ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਨਸੀਹਤ ਕੀਤੀ ਹਾਈ ਯਾਨੀ ਨਸੀਹਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐਡਵਾਈਜ਼ਡ ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਤੀਸਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਖੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਨਸੀਹਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਸੀਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸੀਹਤ ਕੀਤੀ। ਇਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਹੈਵ ਐਡਵਾਈਜ਼ਡ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਬਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਬਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਕਰੇ ਵੀ ਹੈਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਰਬਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਛੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਾਂਗੇ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਗੈਟ ਸਟਾਰਟਡ। ਦ ਫਰਸਟ ਵਰਬ दैट इज एड यानी शामिल करना। शामिल करना, मैं शामिल करता हूँ किसी भी चीज़ को किसी की चीज़ के अंदर। जैसे मैं नमक डालता हूँ तो मैं कहूँगा आई ऐड द सॉल्ट। मैं उसको अपनी लिस्ट में शामिल करता हूँ, आई ऐड हिम इन माई लिस्ट। मैंने उसे शामिल किया, आई एडेड हिम। सिमिलरली द थर्ड फॉर्म दैट इज हैव एडेड। तीसरी फॉर्म ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਆਪਾਂ हैव हैज़ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ आई एडेड तो है, मैं शामिल किया। आई एडेड मैं शामिल कर चुकिया, मैं शामिल कर लिया, ये नहीं मतलब बनेगा। सानू कहना पवेगा, एडजस्ट करना पवेगा, हैव एडेड या हैज़ एडेड या हैड। जिमें कि मैं शामिल कर लिया है, आई हैव एडेड। मैं शामिल कर लिया सी, आई हैड एडेड। मैं शामिल कर चुकिया सी, आई हैड एडेड। सिमिलरली द नेक्स्ट वर्ब दैट इज एड्रेस यानी खिताब करना। खिताब किया, एड्रेस्ड, खिताब कर चुका, हैव एड्रेस्ड। ठीक करना, सैट करना किसी भी चीज़ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਘੜੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਆਈ ਐਡਜਸਟ ਦ ਟਾਈਮ। ਐਡਜਸਟ, ਐਡਜਸਟਡ, ਐਡਜਸਟਡ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਨੱਪ ਕੇ ਦਬਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਐਡਜਸਟ ਕਹਿਲਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਕੜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਕਰਨਾ, ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਐਡਜਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਰੀਫ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦਾ ਐਡਮਾਇਰਰ ਵੀ ਕਹਿਲਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕ੍ਰਸ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰਸ਼ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਹਿਬੂਬ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡਮਾਇਰਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਮ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ आई एडमायर यू, मैं आपकी तारीफ़ तो करता हूँ, मतलब मैं आपको पसंद भी करता हूँ। इस अंदाज में किसी की तारीफ़ करना। आई एडमायर्ड, मैंने तारीफ़ की। आई हैव एडमायर्ड, मैं तारीफ़ कर चुका हूँ। फिर अगला लफ्ज़ है तस्लीम चा करना, मान लेना, यानी किसी गल नूं मान लेना यानी एडमिट। आई एडमिट माई मिस्टेक, मैं अपनी गलती मनदा यानी मैं अपनी गलती तस्लीम की। ये दूसरी हालत अगर मैं कहूँ कि मैं तस्लीम की, मैंने अपनी गलती को माना, आई एडमिटेड। उसने अपनी गलती को तस्लीम चा किया, ही एडमिटेड हिज मिस्टेक। आई हैव एडमिटेड यानी हुण मैं तीसरी हालत बोलांगा, मैं अपनी गलती को मन चुकिया। आई हैव एडमिटेड माई मिस्टेक, मैं अपनी गलती का इकरार कर लिया। यानी एक तो लफ्ज़ है इकरार करना, कन्फैस भी होंदा है। किसी गलती ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ जुर्म ਦਾ कमिट ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ इरतिकाब करके फिर ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ हाँ जी मेरे को गलती हुई, मैं इकरार करना, आई कन्फेस, मैं इकरार करता हूँ, आई कन्फेस, मैं मानता हूँ।
कई चीज़ां अगर अच्छे रिलेशनशिप ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਨਫੈਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਐਡਮਿਟ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਛੁਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਜੇ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਐਡਮਿਟ, दैट्स माई मिस्टेक। द नेक्स्ट वर्ब दैट इज एडवाइस, यानी नसीहत च करना। नसीहत कर लेना, मैं तेनों नसीहत करना, आई एडवाइज यू। मैंने तेनों नसीहत की, आई एडवाइज्ड यू। मैं तेनों नसीहत कर चुके हाँ, आई हैव एडवाइज्ड यू। ये लफ्ज़ अ है, ए नहीं है। बाज़ औक़ात इसको हम एडवाइस कहते हैं, मतलब कई लफ्ज़ जैसे ऐड से शुरू होते हैं, एडी ऐड, वो ऐड नहीं है, कुछ एडी अर्ट भी हैं, क्योंकि बेशतर जो लफ्ज़ हैं, बेशतर लफ्ज़ जो हैं वो आह से होते हैं, जैसे एडवाइज, एक्सेप्ट, एग्री, एडमिट, एडमायर, एडजस्ट, एड्रेस। अब याद रखिएगा, आई वांट यू टू रिपीट विद मी, एड्रेस, एडजस्ट, रिपीट इट, एडजस्ट, एडमायर, एडमिट, एडवाइस, अफोर्ड। अच्छा, ये वो लफ्ज़ हैं जो ए से शुरू होते हैं, मगर इनका शे जो ए है वो शाह साउंड है। सादा लफ्ज़ों ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਪਾਂ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਮਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਅ ਸਾउंड। ओके, अफोर्ड, खर्च उठाना, खर्चा करना। आई कैंट अफोर्ड दिस, आई अफोर्ड दिस, आई अफोर्डेड इट, आई हैव अफोर्डेड यू। अग्री, यानी इतफाक करना, किसी की गल नूं मन लेना। आई अग्री, मैं मानदा हाँ, आई अग्रीड, मैंने माना, आई हैव अग्रीड, मैं मान चुका हूँ। अब जो लफ्ज़ है अग्री, अग्री लफ्ज़ यानी ये वो वाले अग्री होता है जब आप किसी बात को मानते हैं, इतफाक करते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ जो विविड किस्म की है। आई अग्री विद यू, आई अग्री टू योर। ओके, आई अग्री विद यू, मैं आपके साथ हूँ, मुकम्मल। आई अग्री टू यू, और अब योर के बाद क्या चीज़ जो आपकी एडवाइस हो, जो आपकी बात हो, जो कुछ आप समझा रहे हैं उसके साथ, तो अग्री टू और अग्री विद। ओके, इसको दोबारा सुन लीजिएगा। द नेक्स्ट वर्ड दैट इज अलाइट, यानी नीचे उतर जाना। गाड़ी से, जहाज से, ट्रेन से, किसी भी जगह से नीचे उतरना अलाइट कहलाता है, और नीचे उतारना भी अलाइट ही होता है। ओके, अलाइट, एलिट, एलिट इर्रेगुलर वर्ब है। द नेक्स्ट वर्ब दैट इज अलाउ, यानी इजाजत चा देना। अलाउ, अलाउड, allowed, that very simple, allowed। I allow you, मैं आपको इजाज़त देता हूँ। I allowed you, मैंने आपको इजाज़त दी। I have allowed you, मैं आपको इजाज़त दे चुका हूँ। अब ये सारे अगर आप इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप इनको डिफरेंटली सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ कीजिए। यानी कैसे? I, we, you, they, he, she, it। मैं शामिल करता हूँ, हम शामिल करते हैं, तुम शामिल करते हैं, वो शामिल करते हैं। That's it. I add, we add, you add, they add, he adds, she adds। मैंने शामिल किया, तुमने शामिल किया, हमने शामिल किया, उसने शामिल किया, उस लड़के ने शामिल किया। I added, we added, you added, they added, he added, she added। मैं शामिल कर चुका हूँ, तुम शामिल कर चुके हो, वो शामिल कर चुकी है, यानी उसने शामिल कर लिया है, उसने मिला दिया है। She has added, I have added, he has added, we have added the salt। Okay, that's very simple thing। Here we are going to approach over the sentences to make them into a comprehensive mind। कार्ड नंबर 2 है, जैसा कि हम लास्ट टाइम कार्ड नंबर 1 कर चुके हैं। ये 100 कार्ड्स हैं, 1000 वर्ब्स हैं, और इनके इस्तेमाल भी बताए जा चुके हैं। एड्रेस, खिताब करना, एड्रेस। नसीहत करना, एडवाइस, एडवाइस। अलाइट, नीचे उतरना या उतारना। अलाउ, इजाजत देना। एड्रेस, ही एड्रेस्ड विद द पब्लिक, या ही एड्रेस्ड टू द पब्लिक। आई एड्रेस्ड, मैंने खिताब किया, उसने किया। ही एडवाइज्ड मी टू नॉट टू अबैंडन, उसने मुझे यानी ना छोड़ने की तलकीन की इस जगह को। हाँ,
किसी बंदे को छोड़ना forsake होता है, किसी मिशन को छोड़ना forfeit भी होता है, कैंसिल भी होता है, एस्केप भी होता है, एक्सिट भी होता है, अबैंडन भी होता है। जहाज को छोड़ देना अबैंडन, घर को छोड़ देना अबैंडन, किसी जगह को छोड़ देना, किसी मिशन से निकल जाना एस्केप, फॉरफिट, कैंसिल, एग्जिट। ही एडवाइज मी टू नॉट टू अबैंडन, उसने मुझे ना छोड़ने की तलकीन की। आई एलिस्ट फ्रॉम द प्लेन एट 8, मैं जहाज से 8 बजे नीचे उतरा। दिस म्यूजियम अलाउज यू टेकन फोटोज, इस म्यूजियम में आप फोटो ले सकते हैं, या फोटो इजाजत देता है कि आप फोटो लें। सो दीज आर द यूजेस ऑफ दीज वर्ब्स ओवर हियर। एड्रेस, एडवाइस, अलाइट नीचे उतरना, अलाओ इजाजत देना। Okay, so this is the time now to practice these sentences into conjugation or with the different forms. Add जमा करना, I add मैं जमा करता हूँ, I added मैंने जमा किया, I have added मैं जमा कर चुका हूँ। The next verb that is address. He addresses वो खिताब करता है, he addressed उसने खिताब किया, he has addressed वो खिताब कर चुका है। The next verb that is adjust. मैं ठीक करता हूँ वक्त को, I adjust the time. I adjusted मैंने वक्त ठीक किया, I have adjusted the time मैं वक्त ठीक कर चुका हूँ। The next verb that is admire, तारीफ करना, I admire मैं तारीफ करता हूँ, I admire you मैं आपको सराहता हूँ, आपकी तारीफ करता हूँ, या आपको चाहता हूँ, या मैं आपको पसंद करता हूँ। I admired you मैंने की तारीफ आपकी, I have admired you मैं आपकी तारीफ कर चुका हूँ। लेकिन अगर मैं कहना चाहूँ कि मैं आपकी तारीफ कर चुका था, तो then I had admired you मैं आपकी तारीफ करूंगा, I will admire you। The next one that is admit यानी मान लेना, मानना, I admit मैं मानता हूँ, I admitted मैंने माना, I have admitted मैं मान चुका हूँ। Advise नसीहत करना, I advise मैं नसीहत करता हूँ, I advised मैंने नसीहत की, I have advised मैं नसीहत कर चुका हूँ। The next verb that is afford यानी खर्च उठाना, खर्च बर्दाश्त करना। That's very simple to use. You afford it, you have afforded. The agree verb that is agree राजी होना, I agree, you agree, they agree वो राजी होते हैं, they agreed वो राजी हुए, they have agreed वो राजी हो चुके हैं। The next one that is alight यानी नीचे उतरना, I alight from the car, I alight from the car, I have alight from the car मैं कार से नीचे उतरता हूँ, alight मैं कार से नीचे उतरा, alight मैं कार से नीचे उतर चुका हूँ, I have alight from the car। So the last verb of the day is allow यानी इजाजत चा देना, मैं इजाजत देता हूँ, I allow you मैंने तुम्हें इजाजत दी, I allowed you मैं आपको इजाजत दे चुका हूँ, I have allowed you। The last card of the day, card number 2.5, that is using verbs into conjugation, the first verb and the last verb that is advise। यहाँ पे इस कार्ड में आपको 9 जो ज़माने हैं वो उनको कैसे इस्तेमाल करना है, उसमें फॉर्म वही वाली कैसे एडजस्ट हो रही है कंजुगेट करके, और इर्रेगुलर से सेंटेंसेस इसकी दूसरी जानिब है। पहली जानिब नसीहत करता हूँ, आई एडवाइस, नसीहत की यानी मैंने नसीहत की थी या मैं नसीहत करता था, एक ही बात है, आई एडवाइज्ड। मैं नसीहत कर चुका हूँ, आई हैव एडवाइज्ड। अच्छा, मैं नसीहत कर चुका था, आई हैड एडवाइज्ड। ये आप फ़र्क नोट कर लें, हैव एडवाइज्ड कर चुका हूँ, हैड एडवाइज्ड नसीहत कर ली थी या कर चुका था। आई एम एडवाइजिंग नसीहत कर रहा हूँ, आई वॉज एडवाइजिंग नसीहत कर रहा था, आई शैल एडवाइज नसीहत करूँगा, आई शैल हैव एडवाइज्ड नसीहत कर चुका हूँगा, आई शैल बी एडवाइजिंग नसीहत कर रहा हूँगा। नाउ let's move to the last part of the lecture। नसीहत करता रहता हूँ, keep advising नसीहत करता रहा, kept advising नसीहत करते हुए हंसता हूँ, I laugh while advising नसीहत करने के साथ साथ हंसता भी हूँ, I also laugh along with advising नसीहत करने के अलावा हंसता हूँ,
अपार्ट फ्रॉम एडवाइजिंग आई लव, यानी नसीहत करने के अलावा, अपार्ट फ्रॉम एडवाइजिंग। नसीहत करने से पहले बिफोर एडवाइजिंग, नसीहत करने के बाद आफ्टर एडवाइजिंग, नसीहत करने लगा हूं आई एम अबाउट टू एडवाइज। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। That's all for now. Thanks for being with EA English.